Namaskar, I welcome you all in the second video of Relations and Function chapter, class 12 mathematics. Here we will do questions based on equivalence relations and equivalence class. And these questions will be very interesting for you. Okay, you will understand the whole concept properly. Okay, so let us start. Before we do questions, one topic was left in the earlier video, so I want to cover that topic here. This topic is antisymmetric relations. Okay, which relations are called antisymmetric? If elements of the form a comma b belongs to R and b comma a belongs to R, this implies that a and b are equal, then the relation R is called antisymmetric relation. Fine. Now we can have one example. Suppose we take one relation R which is a comma b such that a divides b. Okay guys, this symbol is used to show the division. It means if we say that 2 divides 6, yes, it is correct, but we cannot say that 6 divides 2. Fine. So this is right and this is wrong. Fine, we can cut it. So a divides b. Okay, it means b is divisible by a, and obviously a and b they belong to the domain, whatever domain we want to take. Suppose we are taking here the set of real numbers. So will this relation be antisymmetric? Let us see. If we have any element, like if we say a comma b belongs to R, so it implies that a divides b also, and b comma a belongs to R. This implies that b divides a. Now when we combine these two statements, यानी अगर a b को डिवाइड कर रहा है, b a को डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों को कंबाइन करने पर हम क्या कह सकते हैं? Can we say that a is equal to b? See, if we say that 2 divides 6 and 6 divides 2, obviously for different numbers हम कभी नहीं कह सकते, but अगर ये numbers सेम होंगे, यानी 4 divides 4 and 4 divides 4, then obviously 4 and 4 will be equal. ठीक है? So this is the logic here. Whenever this happens, they have to be necessarily equal. Okay, यानी इन numbers को a और b को necessarily equal होना ही पड़ेगा. Okay, they do not have any other option. ये दोनों equal होंगे. So this is antisymmetric relation for you guys. Okay. अच्छा, एक और टॉपिक छूटा था, that is domain and range of relation. कोई भी relation हमारे पास अगर है, suppose we take one relation which is 2a, suppose 3a, 4b, 4c, okay, which is defined on set a and b. Okay, then how can we write domain of this relation and range? ठीक है, writing domain and range from a relation is actually very easy. बहुत easy task है, कोई difficult नहीं है. We have to take only the first element. जब हम domain लिख रहे हैं, we have to take only the first element. And what is this? 2, 3, 4. That's it. Okay. So this is our domain. And what is range? Range means second element. A, B and C. Okay. Definition में अगर देखें, so this can be written like that. Domain means A such that A comma B belongs to relation. Okay, very simple and sweet. Okay, यहाँ से आपको पूरा clear हो जाएगा. A comma B अगर relation में है, then A, it means the first value will be there in the domain. Okay, it will be simply a set. Similarly, range, this will be B such that A comma B is there in the relation R. ठीक है? सो इस तरह हम डोमेन एंड रेंज फाइंड कर सकते हैं फॉर एनी रिलेशन आर.
अब हम क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, चेक इफ रिलेशन R which is given by ordered pairs AB such that A is lesser or equal to B cube on R. Obviously what does it mean? R on R का मीनिंग क्या हुआ? This relation R is defined on set of real numbers. Okay, this is set of real numbers. ठीक है, obviously हम क्या कर रहे हैं, R क्रॉस R फाइंड कर रहे हैं और उस R क्रॉस R का सबसेट होगा AB. ठीक है, सो दिस रिलेशन R की है, हमें चेक करना है इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीन प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है. ठीक है, वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. तो हाउ कैन वी सी, देखते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिविटी. ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं. सो रिफ्लेक्सिव में हमें क्या करना है, वी हैव टू शो द कनेक्शन ऑफ ईच एलिमेंट विद इटसेल्फ. ओके, प्रॉपर्टी सेज कि A, टाइप के एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, दे शुड बी देयर इन द रिलेशन फॉर ऑल A बिलोंग्स टू द सेट. सेट भी यहां पर R है, सो दिस सेट R. तो अब आप सोचिए कि कोई भी अगर हम रियल नंबर ले लें तो क्या हर नंबर के लिए ये कंडीशन होगा कि A इज लेसर और इक्वल टू A टू द पावर 3. सोचिए, इफ वी टेक ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ओके, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स, 1 से बड़े अगर नंबर ले लें, ओके, उन सब नंबर्स के लिए ट्रू है ये, बिकॉज पावर 3 या तो इक्वल हो, देखिए 1 की पावर 3 मीन्स 1, तो 1 1 के इक्वल हो गया. ओके, अगर कोई बड़ा नंबर भी लेते हैं 2 लेसर और इक्वल टू 2 टू द पावर 3, ऑब्वियसली यहाँ 8 हो रहा है, यहाँ 2 है, ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रहा है, और हर बड़ा नंबर इसे सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, अब लेते हैं कुछ नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, डेसिमल में चेक कर सकते हैं, बिकॉज जब R है तो हमें ईच एंड एवरी नंबर फ्रॉम -∞ टू +∞ हमें चेक करना है. ठीक है, या तो हम पुट करके चेक करें या जनरली चेक करें. ठीक है, और एक बात, अगर हमें ये प्रूव करना है कि रिलेशन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती है, इन दैट केस हमें केवल और केवल एक एग्जाम्पल काफ़ी है इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए. सपोज हम लेते हैं नेगेटिव नंबर्स, ओके, -2. तो क्या -2 इस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करता है? देखिए, -2 लेसर इक्वल टू -2 टू द पावर 3, ये कितना हुआ? दिस इज -8, दिस इज -2, तो दिस इज व्हाट, इज दिस राइट? नेगेटिव नंबर्स है तो दिस इज स्मॉलर एंड दिस इज अ बिगर नंबर, तो ये जस्टिफाई नहीं करता. क्लियर? तो सिंस ये जस्टिफाई नहीं करता, तो देयरफॉर वी कैन से -2, -2 विल नॉट बी देयर इन द रिलेशन. ठीक है, रिलेशन में नहीं होगा. इसका मीनिंग हुआ कि रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ठीक है, देयर आर मेनी एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते थे. यू कैन टेक 0.1, 0.2. सपोज आपने 0.1 लिया, तो 0.1 लेसर इक्वल टू 0.1 की पावर 3, ओके, नहीं होगा, बिकॉज ये हो जाएगा 0.001, ये है 0.1, तो हमेशा ये नंबर स्मॉलर होगा एंड दिस विल बी द बिगर नंबर. ओके, ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा केवल और केवल एक एग्जाम्पल देना हमें सफिशिएंट है. ठीक है, आप एक काम और कर सकते हैं, इस रिलेशन को आप जनरलाइज वे में भी कह सकते हैं. तो इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. दिस इज योर ओन वे. ये आपको खुद से डेवलप करना है अपना क्रिएटिविटी कि किस मेथड में आप डिफाइन करना चाहते हैं. यू वांट टू टेक वन एग्जांपल, यू वांट टू राइट इन जनरलाइज वे, ओके, बिकॉज इन क्वेश्चंस का वे ऑफ राइटिंग बहुत यूनिक होता है. ठीक है, हर क्वेश्चन हर स्टूडेंट जो सॉल्यूशन लिखता है उस लिखने का मेथड डिफरेंट हो सकता है एंड स्टिल दैट मेथड कैन बी करेक्ट. क्वेश्चंस की बहुत खासियत होती है कि इन्हीं क्वेश्चंस को हम लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेंटेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड जनरलाइज में भी लिख सकते हैं, पर्टिकुलर एग्जाम्पल देकर लिख सकते हैं. ओके, तो ये आपको सीखना है अच्छे से. नाउ वी सी सिमेट्रिसिटी.
व्हाट इज सिमेट्रिसिटी? सिमेट्रिसिटी कहती है कि अगर ए बी इज देयर इन द रिलेशन implies that BA is also there in the relation. ठीक है, then we say relation is symmetric. So let us see. Let point 1 and suppose we take 2 belongs to R. This is R is a set of real numbers. तो हम ये दो नंबर लेते हैं. तो point 1 चेक करिए क्या जस्टिफाई करता है ये? Yes, this is true. Okay. Therefore we can say point 1 comma 2 will be there in the relation. This is real numbers, this is relation. ठीक है, so this is true. Now we see the flip side of this. So this is 2 and 0.1. इनके लिए चेक करते हैं what happens. तो क्या हम लिख सकते हैं 2 is lesser or equal to 0.1 to the power 3? बताइए, is this right? This becomes 0.001. Obviously 2 से बहुत छोटा हो जाएगा. तो since 2 is not lesser or equal to this, ना तो less than है ना equal to है, therefore we can say 2, 0.1 is not there in the relation. ठीक है, this is relation. And hence अब देखिए ये जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन से क्रॉस चेक कीजिए. 0.1, 2 रिलेशन में था बट 2, 0.1 रिलेशन में नहीं है. ठीक है, सो देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक. ओके, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. ट्रांसिटिविटी चेक करते हैं. ट्रांसिटिविटी क्या कहती है कि इफ वी हैव AB, BC in the relation implies that AC is also there in the relation. ये भी रिलेशन में है, तब हम कहते हैं कि रिलेशन ट्रांसिटिव है. ओके, तो यहां पर हम कुछ एलिमेंट ले सकते हैं. देखिए यहां पर भी हमें क्रॉस चेक करना होगा कि या तो हम जनरलाइज वे में बात करें या फिर पर्टिकुलर एलिमेंट्स लेके चेक करते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस अगर हमें गलत प्रूव करना है तो सम एग्जांपल्स भी काफ़ी हैं. सपोज वी टेक 16 ओके एंड 5. ये दो नंबर्स रियल नंबर्स में है. ओके, अगर हम 16,5 देखें तो क्या ये रिलेशन में होगा? चेक करिए. फॉर 16,5 हम यही पैटर्न फॉलो कर लेते हैं. तो क्या 16 लेसर और इक्वल टू 5 to the power 3 है? Therefore we can say 16,5 will be there in the relation. ठीक है, अब हमें दूसरा नंबर चाहिए. अब हम लेते हैं 5 to the power suppose 1/3 ये लेते हैं. अब हम कनेक्शन दिखाते हैं. देखिए इन दोनों कनेक्शन दिखा दिया हमने. अब 5 और इस नंबर का कनेक्शन दिखाते हैं. तो 5 क्या इस नंबर 1/3 की पावर 3 से लेसर और इक्वल टू है? सिंप्लीफाई कीजिए इसे. 5 to the power 1/3 क्यूब. सो दिस 3 कैंसिल, दिस बिकम्स 5 ओनली. सो 5 इज इक्वल टू 5. इक्वल है, जस्टिफाई है, इट इज ट्रू. ठीक है, बोथ आर ट्रू. देयरफॉर वी कैन से दैट 5 इज कनेक्टेड टू 5 to the power 1/3. ओके, अब हमारा टास्क क्या है कि क्या ये 16 इस 5 to the power 1/3 से भी कनेक्टेड होगा. ठीक है, यानी हमने ए बी और बी सी तो दिखा दिया रिलेशन में है. अब हमें शो करना है कि क्या ए सी रिलेशन में है. अगर ए सी भी रिलेशन में है तभी हम कहेंगे कि दिस रिलेशन इज ट्रांसिटिव. ओके, अदरवाइज हम इसे ट्रांसिटिव नहीं कहेंगे. 16 और 5 to the power 1/3 पावर 3 किया इसका. क्या ये लेसर और इक्वल टू है? चेक कीजिए. सिंप्लीफाई करेंगे, दिस बिकम्स 5. तो 16 5. ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो दिस इज रॉन्ग, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है, इंप्लाइज दैट 16 एंड 5 to the power 1/3 रिलेशन में नहीं होगा. दिस विल नॉट बी इन द रिलेशन. ठीक है, तो अब देखिए ए बी और बी सी थे रिलेशन में बट ए कॉमा सी रिलेशन में नहीं है. तो हम क्या कहेंगे? Relation is not transitive. Therefore,
R is not transitive. जब ट्रांसिटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है. गाइस, दिस सॉर्ट ऑफ नंबर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कोई भी 3 सेट ऑफ नंबर्स चाहिए जो इस प्रॉपर्टी को डिससेटिस्फाई करते हैं. ओके, आप ये भी ले सकते हैं और आप ऐसे हजारों लाखों नंबर्स में से कोई भी नंबर ले सकते हैं. सपोज और मैं नंबर सजेस्ट करूँ आपको, देन इट कैन बी 10, 4 एंड 4 टू द पावर 1/3. ठीक है, 10, 4 एंड 4 टू द पावर 1/3 ये नंबर हो सकते हैं. 10, 5 एंड 5 टू द पावर 1/3 ये नंबर भी हो सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे सेट ऑफ नंबर्स हो सकते हैं. ठीक है, ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. दिस इज द गिवन सेट A. ठीक है, अब रिलेशन किस तरह से डिफाइन है? R इज गिवन एज A, B such that mod of A minus B is a multiple of 4. Okay, mod of A minus B is a multiple of 4. Obviously जो A और B वैल्यूज हैं, the value will be from the set A, because जो रिलेशन डिफाइन है वो सेट A पर डिफाइंड है. ठीक है, यानी हर एलिमेंट क्या होगा, जो A, B सॉर्ट ऑफ एलिमेंट है, दिस विल बी फ्रॉम A क्रॉस A. अब हमें चेक करना है कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट, एंड वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंस क्लास. इक्विवेलेंस क्लास 1 हमें फाइंड करना है. ठीक है, और इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिविटी. तो रिफ्लेक्सिविटी में हमें सेम एलिमेंट लेना है. तो लेट, अब ये क्वेश्चन एक फाइनाइट सेट है गाइस, याद रखिएगा. इंटीजर्स जो कि 0 से 12 तक है. सो ऑब्वियसली आप चाहें तो सेट को 0, 1, 2 एंड सो ऑन टिल 12 इस तरह भी लिख सकते हैं. दिस इज ऑल्सो राइट. तो लेट A बिलोंग्स टू A. मान लेते हैं कोई सेट A का कोई एक एलिमेंट A है, यानी 0 से 12 तक का कोई भी एक नंबर. फाइन, हम चाहें तो एक एक नंबर के लिए कर सकते हैं, बिकॉज इन दैट केस हमें 12 टाइम्स सोचना पड़ेगा. और एक एलिमेंट लिखने का मीनिंग ये हुआ, जनरलाइज वैल्यू लिखने का मीनिंग हुआ कि हमें केवल एक बार सोचना है. ठीक है, एक एलिमेंट के लिए एक्सप्लेनेशन दिखाना है. ओके, तो इट इज ऑलवेज ए बेटर थिंग. तो हमने एक एलिमेंट लिया A, और A, A को हम देख रहे हैं कि क्या रिलेशन में होगा. तो रिलेशन में कब होगा A, A? जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी. तो पहले प्रॉपर्टी चेक करते हैं. क्या A, A मॉडुलस मल्टीपल होगा 4 का? चेक करते हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज 0, and 0 modulus is 0 only. And guys, can we write 0 as multiple of any number? Yes, because 0 into any number is 0 only. ठीक है, 0 into any number is 0. So this 0 is a multiple of 4. Therefore A, A belongs to R, since A minus A modulus, that is 0, is a multiple of 4. ठीक है, for all A belongs to A. So R is reflexive. Next we talk for symmetricity. सिमेट्रिसिटी में हम लेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स, A, B टाइप के एलिमेंट्स लेंगे. लेट कोई भी दो नंबर्स हैं यहां पर. सपोज हम लेते हैं A and B belongs to A, such that A, B is there in the relation. तो अगर ये रिलेशन में है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि A minus B modulus is a multiple of 4. तो हम क्या ले सकते हैं? वी कैन राइट B minus A and modulus माइनस, इस तरह लिख सकते हैं. हमने केवल माइनस कॉमन लिया. दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4.
Okay, अब minus of any number, obviously it can be written as b minus a modulus. So this is a multiple of 4. ओके, या आप जनरलाइज वे में भी लिख सकते हैं, आफ्टर दिस स्टेप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि अगर a माइनस बी मॉडुलस 4 का मल्टीपल है तो b माइनस a में भी उस नंबर से डिवाइड जाएगा. एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं मैं इस बात को. सो 0 माइनस 8 ये जस्टिफाई कर रहा है. ओके, दिस इज कमिंग 8. ओके, अब यहां पर हमने लिख लिया 8 माइनस 0, तो हाउ मच इज दिस? दिस इज ऑल्सो 8. 8 भी मल्टीपल होगा 4 का. ठीक है, लेकिन हमारा सेंस इस पॉइंट पर है जिस पॉइंट पर हमारी रिलेशन डिफाइंड है, उस पॉइंट पर हमें टोटली फोकस करना है. इट मींस वी कैन से b comma a element will also be there in the relation and hence relation R is symmetric. ये रिलेशन भी सिमेट्रिक होगी. लेट अस टॉक फॉर ट्रांसिटिविटी. ट्रांसिटिविटी में हम 3 एलिमेंट्स लेंगे ए बी सी. लेट ए बी एंड सी 3 एलिमेंट्स आर देयर इन द सेट. यानी कोई भी 3 नंबर ले लिए हमने, तो इन 3 नंबर्स के लिए पहले हम बात करेंगे ए बी एंड बी सी, इन 2 एलिमेंट्स की. यानी हम अज्यूम करेंगे कि दीज 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर देयर इन द रिलेशन. मीन्स दैट ए बी, ये सेंटेंस, मॉडुलस ऑफ a माइनस b is a multiple of 4. ठीक है. सिमिलरली बी सी अगर रिलेशन में है तो हम कह सकते हैं कि b माइनस सी मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4. इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि a माइनस b मॉडुलस इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 इंटू सम अदर नंबर. कोई भी नंबर ले लीजिए. k इज वॉट? k इज एनी इंटीजर, बिकॉज द सेट भी इंटीजर्स का ही है. कोई भी इंटीजर मल्टीपल हो सकता है. ठीक है, a माइनस बी मॉडुलस. फाइन. सिमिलरली हम लिख सकते हैं b माइनस सी मॉडुलस इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 इंटू सम इंटीजर. अब ये इंटीजर जरूर नहीं है कि सेम हो, इट कैन बी एनी अदर इंटीजर. ठीक है, तो हमने l सपोज अज्यूम कर लिया, l इज ऑल्सो सम इंटीजर. गाइस, अगर हम ये मॉडुलस रिमूव कर दें, देखिए मॉडुलस यहाँ पर था 4 का, तो एक्चुअली मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा. सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट a माइनस बी, व्हाट इज दिस, इज इक्वल टू 4k का सम मल्टीपल, ऑब्वियसली पॉजिटिव या नेगेटिव, 4k. सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4l. ठीक है, अब यहां से सोचिए हमें फोकस करना है a कॉमा सी पर, a कॉमा सी पर, तो ऑब्वियसली b हमें नहीं चाहिए, b इज नॉट डिजायरेबल. तो कैसे रिमूव कर सकते हैं? ऑब्वियसली हमें ऐड करना होगा. ऐड कीजिए, और एडिशन दिस इज कैंसिल. सो a माइनस सी वी हैव गॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 एंड k प्लस l. k और l क्या थे? देवर इंटीजर्स, और प्लस होगा तो ये भी कोई इंटीजर होगा ऑब्वियसली. तो दिस इज वॉट एवर इट इज, कोई भी इंटीजर अगर है ये, बट 4 हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि a माइनस सी का जो मॉडुलस है दिस इज इक्वल टू इज ए मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल ये जरूर होगा. ठीक है, a माइनस सी मॉडुलस, और यही तो हमारा नेक्स्ट स्टेप था, यही हमें प्रूव करना था. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि a कॉमा सी विल बी देयर इन द रिलेशन, ये रिलेशन में है. ठीक है, तो ए बी एंड बी सी हमने अज्यूम किया था, प्रूव कर दिया ए सी रिलेशन में है. देयरफॉर द रिलेशन आर इज ट्रांसिटिव. जब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, ऑब्वियसली रिलेशन विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, हैंस आर रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. ओके गाइस, अब एक छोटा सा टास्क और था इस क्वेश्चन में, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 फाइंड करना है हमें. इन व्हाट इज दिस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1? ये ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जो एलिमेंट्स 1 से कनेक्टेड हैं बाय द रिलेशन. ऑब्वियसली एलिमेंट्स कहाँ से होंगे? सेट ए से होंगे.
ठीक है, यानी ए सेट के वो एलिमेंट्स हमें ढूंढने हैं जो एलिमेंट्स 1 से कनेक्टेड हैं बाय द रिलेशन आर। ओके, बाय द रिलेशन आर। तो अब सोचिए कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। इट मीन्स इसका सेंस ये भी हुआ कि x माइनस 1 क्या है, इज इक्वल टू ए मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। अब बताइए कि मल्टीपल ऑफ 4 है और 0 से 12 तक नंबर्स ओनली पॉसिबल है। यहाँ पर 0 ऑब्वियसली नहीं आएगा, 1 रख सकते हैं। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, और 0 ऑब्वियसली मल्टीपल ऑफ 4 है। सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 विल हैव फर्स्ट एलिमेंट एज 1, 1 माइनस 1 0 हो रहा है। ओके, 2 रखिए, नहीं जस्टिफाई कर रहा है। 3 4 नहीं जस्टिफाई कर रहा है। 5 माइनस 1 4 होता है, 4 मल्टीपल है 4 का, सो 5 सूट्स हियर। देन 6 7 8 जस्टिफाई नहीं करते। 9 रखिए, 9 माइनस 1 8, 8 ऑब्वियसली मल्टीपल है 4 का, सो दिस इज ऑल्सो 9 ऑल्सो कम्स हेयर। तो 1 5 एंड 9 ये 3 एलिमेंट्स होंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में। ठीक है, दिस इज द वे वी कैन राइट। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। इफ यू वांट मोर क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड या कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन आपकी क्वेरी है तो आप मुझे भेज सकते हैं, अपना रिप्लाई दे सकते हैं। आई विल इन्वॉल्व दोज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए एंड वीडियोस देखते रहिए।